Yes, so today we have debate round. Topic of debate is green revolution, girls versus boys. Girls, are you in favor or against? फेवर. तो गर्ल्स करेंगी फेवर, ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए, और बॉयज क्या बात है, लड़के तो हमेशा अगेंस्ट ही रहते हैं. अब आज देखते हैं लड़के कितना अगेंस्ट हैं और लड़कियां जीतती हैं या लड़के. तो ऑब्वियसली मैं पार्शियल नहीं बनूंगी, मैं चाहती हूँ दोनों जीते, कोई भी एक ना जीते. लेट्स स्टार्ट. करेंगे स्टार्ट? ओके, लाइए. ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. कौन बोलेगा फर्स्ट पॉइंट? गर्ल्स क्या बोलते हो, क्यों होना चाहिए? Green revolution helped the farmers to shift from subsistence farming to commercial farming. Commercial crops are resulted in cash, which will increase the economic growth. This is a sign of development and growth. But it decreases the soil quality used for growing crops. What will you say? But green revolution increase our output also. A lack of biodiversity in the global structure of croplands has been established. So use of agrochemicals was an expensive measure for Indian farmers, and that's why they are not able to use the HYV seeds. जैसा जैसा कि उन्होंने कहा कि फार्मर्स की डेवलपमेंट हो रही है, जैसे उन्होंने कहा कि फार्मर्स की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन देखा जाए कि फार्मर सिर्फ वही जो काफी रिच हैं, जो पुअर फार्मर्स है उनका नहीं हो रही है, क्योंकि जो उगाने के लिए जो काफी सारी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वाटर की ये सब चीजें चाहिए होती हैं, तो इसलिए सिर्फ रिच फार्मर्स के लिए अच्छा है, ना कि पुअर के लिए. And you also know the biological magnification was also increasing by using these chemical substances. And even Punjab has suffered many deaths, serious illness, and polluted and scarcity water resources. And I want to say most of the farmers' conditions is increasing due to this. Most of the farmers are converting into rich because of this HYV seeds, and due to the export of crops our GDP is also increasing. What do you want to say now? What will you think about our health? Using HYV seeds, our health is not good. If you want to focus on health, then just also focus about the population. India's population is increasing day by day, and if we will not use HYV seeds, then we will have lack of food. Then what you will do? But what about we are having very serious illness because of these chemical substances? And you are saying about the GDP increased because of the green revolution. But that time the farmers, only few farmers have their own land. Many of the people have to work under the zamindars. They were still poor that time. It's just after the independence, right? I guess. Exactly. Just after independence, no one can become rich directly. They need so much time. They are not becoming rich. Only few people are becoming rich. Now, give it to. Yes, my friend want to say something. जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, वो कुछ समय के लिए है. HYV सीड्स की वजह से HYV सीड्स प्रोडक्शन तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो लैंड है वो खराब होती जा रही है. कुछ समय बाद जब वो खराब हो जाएगी तो हमें सिर्फ इंपोर्ट पे करना पड़ेगा ध्यान, इंपोर्ट कराने पड़ेंगे वीट्स, जो भी चीजें होती हैं खाने पीने की, तो हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी. तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
साइंस इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस. हमारी साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब दोबारा से इस चीज पे फोकस कर रही है कि कैसे सॉइल को रिगेन किया जाए. But the food quality of the food grains are also diminishing. तो कोरोना के टाइम पर भी तो हम HYV सीड्स का यूज कर रहे थे और वो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हेल्प कर रही थी. जैसे कि देखा जाए, इन्होंने बोला कि फूड्स का ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, पैसा ज्यादा आ रहा है, लेकिन उस पैसे का फायदा क्या कि अगर कुछ समय बाद इंसान ही ना रहे, डिसीजेस. But right now, ma'am, you can't. yes ma'am. पहले लोग भूख से मर रहे थे बट एटलीस्ट अब उन्हें खाने को तो मिल रहा है, चाहे जैसा भी मिल रहा है. ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से टाइम का था, उस बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, एग्जैक्टली उस टाइम पे कोरोना आया था. बस अब दूसरी बात ये कि HIV सीड्स को HYV सीड्स से जब हम भी क्रॉप ग्रो करते हैं, उसके लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है और हर फार्मर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता. एंड दैट्स द मेजर ड्रॉबैक आई गेस. बट उन्हें खाने को तो मिल रहा है ना. मेन रीजन तो यही है कि सबको खाना चाहिए, उसके बिना तो वो रह ही नहीं सकते. खाने को तो हमें ऑर्गेनिक फूड भी मिल सकता था, लेकिन ये HYV सीड्स की वजह से हमें आजकल केमिकल वाला खाना खाना पड़ रहा है. और जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं वो मार्केट में इतना कॉस्टली मिलते हैं कि लोग उन्हें खरीदना ही नहीं चाहते अब, बिकॉज ऑफ द प्राइस. अगर शायद HYV सीड्स की वजह से क्रॉप्स ग्रो ना होते तो हम आज ऑर्गेनिक फूड ही खा रहे होते. और इंडिया में जो आजकल तबीयत ज्यादा खराब रहती है लोगों की, वो इसका मेन रीजन भी वही है कि हमारा खाना ही अच्छा नहीं है. और अगर आप बोल रहे हो कि अगर ऑर्गेनिक खाते तो कितने लोग खा लेते. इतनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों को खाना मिल जाता और कितने लोग तो भूख से ही मर जाते. एटलीस्ट कितने सबको मिल जाता. नो यू कांट. आपको अगर ऑर्गेनिक खाना है, यू कैन स्टार्ट योर फार्मिंग एट योर होम. आपके परिवार को खाना मिल जाएगा ऑर्गेनिक. आपने टेक्नोलॉजी की बात करी थी ना, आपने भी टेक्नोलॉजी की बात. तो गवर्नमेंट उसके लिए भी साइंटिस्ट वगैरह सारे टेक्नोलॉजी ला रहे हैं. ठीक है, आजकल जब जापान हमारा 2 दिन के अंदर ब्रिज बना सकता है तो क्रॉप क्यों नहीं ग्रो कर सकता, ये बताओ. हाँ, तो जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी, HYV सीड्स बंद हो जाएंगी. तो अभी आप यही बोल रहे हो ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा बेटर है. ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा बेटर नहीं है. वी आर सेइंग बेटर है, बट अभी इतनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से HYV इज गुड फॉर पॉपुलेशन. यू गेट दैट. अभी फिलहाल सोल्यूशन यही है. तो क्या तब से वही सॉल्यूशन चलता आ रहा है? तो वो गलत है ना. हम उसी के लिए तो अपोज में है कि नहीं होना चाहिए ये. हम तो करते हैं, आप आओ मेरे घर पे. हाँ जी, तो हमने यहाँ देखा. बोलना है अभी आपको? अभी अगर आपको लगता है बोलना तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, नहीं बोलना तो फिर मैं इसको एंड करूँ, क्योंकि डिबेटेबल इशू है. तो जवाब तो नहीं मिलेगा कि बॉयज़ करेक्ट है हमारी या गर्ल्स करेक्ट है. डिबेटेबल इशू डिबेटेबल ही रहेगा, क्योंकि दोनों करेक्ट है. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक पे नहीं जा सकते. ठीक है, चलिए, थैंक यू.